इंग्लिश यस मैम इंग्लिश इंग्लिश में कौन सी पेज नंबर? इंग्लिश वेट चैप्टर पेज नंबर 4 पेज नंबर 26 यूनिट 4 बोला था ना 26 तो 26 22 open the page number 22 everyone 22 open the page number 22 ओके यस मैम मैम open the page number 22 आर्चरी मैम वाला आर्चरी वाला एक्टिविटी Okay. नंबर 6 हाँ activity 6 Ma'am, I who can will read. read yes Arya start reading Archery is a sport. History of archery in India dates back in Vedic era. You are familiar with the mythological character Eklavya, given her is the beginning of his story. Read it. This is the story of a long gone year. In Era. the country of India, nearly 5,000 years back, lived a boy named Eklavya, the son of a tribal chief in the forest of the kingdom Hastinapur. Eklavya was a brave, handsome boy. He was loved by all, but he was not happy. His father saw that something troubled Eklavya. More than once he found his son lost deep in thought. When other boys enjoyed the pleasures of hunting and playing one day the father. मैम आगे पढ़ू okay चलो please explain line please यस मैम start explaining हाँ मैम दिस इज द स्टोरी ऑफ लोंगोनेरा मैम ये लोंगोनेरा की स्टोरी है इन द कंट्री ऑफ इंडिया मतलब बहुत पहले का हाँ बहुत मैम पहले का इन द कंट्री ऑफ इंडिया इंडिया में नियरली 5,000 ईयर इंडिया में 5,000 साल पहले एक बॉय रहता था जिसका नाम एकलव्य है द सन ऑफ ट्राइबल चीफ इन द फॉरेस्ट ऑफ किंगडम हस्तिनापुरा कहाँ पे रहते हैं वो लोग रहते थे किंगडम हस्तिनापुरा में फॉरेस्ट में हाँ एकलव्य वाज द सन ऑफ फॉरेस्ट चीफ ट्राइबल चीफ हाँ। एक ट्राइबल प्रजाति की एक चीफ मुखिया थे उनकी बेटा था एकलव्य हाँ और एकलव्य ब्रेव और हैंडसम बॉय है एंड हस्तिनापुर के पास ही ये जंगल था एकलव्य वाज अ ब्रेव एंड हैंडसम बॉय वो ब्रेव और हैंडसम बॉय है था मतलब फिर ही वाज लव्ड बाय ऑल वो सबसे प्यार करता था पर बट ही वाज नॉट हैप्पी पर वो खुश नहीं था फिर हिज फादर वो नहीं खुश था थिंग ट्रबल्ड एकलव्य जैसे कि दूसरे बच्चे क्या करते थे हंटिंग करते थे खेलते थे है ना बट खेलते थे बट एकलव्य एंजॉय प्लेजर ऑफ हंटिंग एकलव्य को खुश मिलती थी हंटिंग में बहुत ही खुशी मिलती थी एंड प्लेइंग हाँ एंड प्लेइंग में वन डे हिज फादर एक दिन उसके पापा फिर स्टोरी अभी कुछ नहीं है ओके तो नेक्स्ट मैं रीड करूं नहीं स्टॉप दिशा Sarlin, continue reading. Sarlin. Now here is the end of the story. Here is my Guru Dakshina. Drona, Eklavya said, I am happy that you have made me your disciple, even if I am a
Mere Shudra मेयर Hunter. मेयर Mere Shudra Hunter. मैम मेयर मतलब तुच्छ मतलब बहुत ही छोटा छोटा आदमी Okay, हूँ ma'am. ऐसे बोलते हैं ना मेयर The sage was humbled. He blessed the young archer for his courage. Eklavya, even without your thumb, you will be known as a great archer. I bless you that you will be remembered forever for your loyalty to your guru. Drona declared and left the forest. He was moved and grieved at his own action, but he was content that his promise to Arjuna was not broken. The gods blessed Eklavya from above. But despite his handicap, Eklavya continued to practice archery. How could he do so? When one is dedicated, one can make even mountains bow. With practice, Eklavya could shoot arrows with his index and middle finger, and he became a greater archer than he was ever before. His renown spread far and wide. When Drona came to know this, he blessed the boy silently and begged for divine forgiveness. And true to Drona's Yes. blessing, Eklavya is still praised as the most loyal and brave student in the epic of Mahabharata. Mahabharata. Okay. Heth, explain. Explain. अभी ये स्टोरी का एंड है। एकलव्य ऐसा बोलता है कि ये लो गुरु दक्षिणा। द्रोणा को ऐसा बोलता है कि ये लो मेरी गुरु दक्षिणा। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं क्या था उसका गुरु दक्षिणा क्या था? What was his गुरु दक्षिणा? Yes, Thumb. he cut his thumb. मैं वो मैं बाद में वो बोला कि मैं खुश हूँ कि आपने मुझे एक मतलब डिसाइपल बनाया एक छोटा सा शूद्र हंटर का, छोटे से शूद्र हंटर का। बाद में ये जो सेज है उसने मतलब ये जो सेज है मतलब ये सेज मतलब द्रोणाचार्य ऋषि द्रोणाचार्य है, उसने ब्लेस किया वो आर्चर को मतलब ब्लेस नहीं किया, हम्बल्ड हो गया। वो अपना सिर झुक दिया उनके सामने क्योंकि उसने तो उनको नहीं सिखाया, फिर भी गुरु दक्षिणा मांग लिया। मतलब ये जो है गुरु वो झुक गए और बाद में वो जो छोटा मतलब जो आर्चर है एकलव्य उसको भी ब्लेसिंग थी और बाद में एकलव्य भी वैसे भी मतलब बगैर अंगूठे के भी वो है ना बहुत अच्छी आर्चरी करता था और वो बहुत बड़ा आर्चर भी बना था। और बाद में वो जो गुरु द्रोणाचार्य है उसने ब्लेस किया और उसको रिमेम्बर किया मतलब हमेशा के लिए उसको याद मतलब क्या बोलते हैं याद रखा और लोग उनको हमेशा के लिए याद रखेंगे ऐसा ये मतलब सैक्रिफाइस और ऐसा गुरु दक्षिणा देने के लिए की जो लॉयलिटी थी वो गुरु द्रोणाचार्य से मतलब गुरु द्रोणाचार्य को अच्छी लगी और द्रोणाचार्य ने ऐसा भी मतलब गुरु द्रोणाचार्य वहां से जंगल में से चले गए और बाद में वो लोग अपनी मतलब वो लोग अपने वो ग्रीव्ड मतलब क्या होता है दुख वो ग्रीव्ड लेके चले गए अपने एक्शन मतलब ओन एक्शन में चले गए, पता नहीं कहाँ पे चले गए। बट वो जो काम किया था गुरु द्रोणा ने कि एक जो डिसिपल है उनका डान हाथ का अंगूठा, वो अगर सारे शिष्य से ये अंगूठा मांगता वो इक्वलिटी होता, लेकिन ये तो इक्वलिटी नहीं, ये तो पार्शियलिटी है ना, अर्जुन के प्रति पार्शियलिटी है ना गुरु द्रोणा की, इसीलिए तो मांगा था अंगूठा मांगा, फिर अंगूठा काट के भी दे दिया, फिर वो अपने कर्म के ऊपर ओन एक्शन जो किया था अपना कर्म के ऊपर उसने दुख प्रकाश किया, दुख प्रकाश किया।
but he बाद में fulfilled that promise to अर्जुना कि वो मतलब ये इस जो वजह अर्जुन ने से जो प्रॉमिस की क्योंकि वो उसने जो प्रॉमिस किया था अर्जुन को वो नहीं वो टूटा, इसलिए वो वो नहीं खुश थे। टूटा। लेकिन किसी का जिंदगी तो बर्बाद कर दिया। बोलो। हाँ, और है ना जो गॉड है ना, मतलब गॉड ने एकलव्य को बाद में ब्लेस किया। और बट मैम क्यों फिर भी एकलव्य हैंडीकैप होने के बाद भी उसने अपनी आर्चरी की जो प्रैक्टिस है वो शुरू रखी। और बाद में सब लोगों को मतलब ऐसा लगा कि कैसे कर रहा है वो। बाद में सबको पता चला कि वो बड़े माउंटेन पे एक माउंटेन पे हर रोज माउंटेन पे बो लेके जाता है और प्रैक्टिस करता है। और उसने प्रैक्टिस से किया कि एकलव्य उसके इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर से शूट कर सकता है। और शूट करता है और है ना बड़ा आर्चर बना तब भी। बाद में वो जो रीनो मतलब ये जो था वो सारी जगह पे मतलब फैल गई ये बात। फैल गया, वो बहुत और फेमस हो गए थे क्योंकि क्योंकि वो हैंडीकैप होने के बाद भी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से आर्चरी करता है। बाद में द्रोणा को ये सब पता चला तो वो मतलब साइलेंट मतलब एकदम चुपके से है ना उसको ब्लेस किया। और मतलब अपनी जो गलती थी उसको भुलाने के लिए भी उसने मतलब बैक मतलब उसने भी ऐसा कहा कि मेरी गलती भीख मतलब मांगा, मैं फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। भीख मांगी। किसके पास? डिवाइन फॉरगिवनेस। तो भगवान के मैम पास उसने अपना गलती स्वीकार कर लिया और मैम अपनी माफी मांग लिया। मैम हैंडीकैप बोलो। मतलब फिजिकली शायद हैंडीकैप मतलब फिजिकली जो क्योंकि चैलेंज होता हमारी है, चैलेंज पर्सन, इम्पोर्टेंट वो हैंडीकैप। ठीक जैसे है। कि ओके अंगूठा काट चले गए थे ना, इसीलिए। हाँ, अंगूठा नहीं हाँ, होगा तो कोई भी नहीं होगा। बाद में द्रोणाचार्य ने उसको मतलब ट्रू मतलब सच्ची ब्लेसिंग दी। और एकलव्य अभी भी ब्रेव स्टूडेंट है। मतलब ये महाभारत का अभी भी एक ब्रेव स्टूडेंट और महाभारत की कथा में वो ब्रेव सबसे स्टूडेंट, फेथफुल नाम से जाना जाता है। ब्रेव स्टूडेंट अभी भी महाभारत जो एपिक है महाभारत उसके अंदर वो है अभी भी मतलब ब्रेव अभी भी उसका नाम उसका होता है। नाम अभी भी बोलते हैं लोग। ओके, हाँ। चलो नेक्स्ट हनुमान। Yes, ma'am. स्टार्ट रीडिंग। Ma'am, activity 7. यस। Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar is probably the most famous and popular sportsman in India. He has become a public figure but has managed to maintain a dignified, डिग्निफाइड। mature look, remaining aware of his responsibility while protecting his privacy. When he married Anjali, a doctor and friend from his childhood, he rejected large sum from satellite TV of live coverage, keeping it a family अफेयर। affair. स्टॉप, Affairs. स्टॉप। शुभ, शुभ, शुभ पांडे। Yes, ma'am. स्टार्ट रीडिंग आफ्टर दैट। मैम पहले से नो, फैमिली अफेयर से उसके बाद। he knows he knows his worth, and over the next few years his एंड endorsements are worth 75 million US dollars. But he is not a grabber. His father, who was a university professor, taught him a sense of work ethic.
Short. Sachin Tendulkar was born in Mumbai on 24th April 1973. Since Since childhood, he has trodden a trodden very steady and almost inevitable. inevitable path to greatness. In school at Shraddhashram Ardha Vidya Mandir, he got an opportunity to bat for hours in a competition of under 17 Harry's Memorial Challenge Shield. He scored his first century for a school at the age of 12, and since then there was no looking back. Okay, stop. Rajal, He was stop soon. Yes, ma'am. Rajal, start reading. Yes, ma'am. After that. Khushi, turn on your video. Otherwise, you will be absent. Jaita, Vivek, Saket, Sarleen, start. Rajal. Rajal, start. You are mute. Rajal, you are mute. Oh, he was 16 years and 205 days old when he made his Test debut in November 1989 in the National Stadium in Karachi. The very next year, he hit his first Test century at Old Trafford, Manchester, England. His century, Manchester. England. This century was an example of an exercise in technique, Concentration. concentration and application beyond his trader age, and it saved Tender age. standard and age, and it saved the match being lost. Had it come 31 days earlier, he would have been the youngest centurion make in Test history. Century In maker. 1991, century maker in Test history in 1991-1992. He went to Australia, where they still talk in a way of this century scored in Perth and Sydney. खुशी मैम 9 जन का वीडियो ऑफ है। खुशी Yes. वीडियो ऑन करके एक्सप्लेन करो। अगर वीडियो ऑफ Yes, ma'am. करोगे तो यू विल बी एब्सेंट। Okay, ma'am. एक्सप्लेन करो। Okay, ma'am. ओके He was मैम जब सचिन तेंदुलकर 16 इयर्स के थे तो उन्हें 205 डेज तक उन्हें टेस्ट डेब्यूट किया था इन नवंबर पहले से फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग Starting से? 87। ओके हाँ तो मैम जब सचिन तेंदुलकर आज के जमाने में मतलब बहुत फेमस स्पोर्ट्समैन माना जाता है इंडिया के ही बिकम अ पब्लिक फिगर मैनेज टू रिमेम्बर डिफाइनिटी मैच्योर मैम डिग्निफाइड मतलब एक मैम आई है ऑल्सो मैम सीरियस डिग्निफाइड मतलब जो मर्यादा होता है मर्यादा। हाँ मैम सीरियस सीरियस और मैम मतलब बहुत मैच्योर लुक थे। हाँ मतलब बहुत मैच्योर थे आउटलुक से रिमेम्बर अवार्ड ऑफ हिज रिस्पॉन्स मैम उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते थे वो will protecting his privacy. He when married अंजलि a doctor मैम उनने एक अंजलि नाम की लड़की मीन्स उनकी चाइल्डहुड से उनकी फ्रेंड थी तो वो भी डॉक्टर है तो उन्होंने उनसे मैरिज किया था। He rejected a large sum of a satellite TV for live coverage. मैम सचिन तेंदुलकर ने ना सैटेलाइट टीवी जो थी ना उनके चैनल पे
उन्हें लाइव कवरेज दिखाने से रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनको उनकी प्राइवेसी चाहिए थी उनके फैमिली के साथ. Okay, live coverage. Keeping in mind when he worth his the over next few years he understand are worth 75 million USA dollars, but he not grabber. मतलब उनको मतलब वो 75 लोग सैटेलाइट years. टीवी से इतना पैसा देने वाले थे, $75 मिलियन, फिर भी वो उसने Yes, माना ma'am. किया था, वो पैसा हाँ, की ma'am. लालच में नहीं आए. नहीं लाएंगे. हाँ मैम. His father, who was a university professor, taught him a sense of work ethics. मैम उनके फादर जो थे ना वो यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज होगा उनके प्रोफेसर से, तो उन्हें सिखाया था कि मोरल एथिक्स का मीन्स होता है मोरल मैम. Ethics. तो उस हाँ हाँ. सेंस ऑफ मोरल्स को. अब सचिन तेंदुलकर was born in Mumbai on 24 April 1973. तो मैम सचिन तेंदुलकर का जो जन्म हुआ था वो 24 अप्रैल को हुआ था 1973. He is in childhood. He has a trodden a very steady and almost inevitable path to greatness. In school at Shraddha Mandir Vidyalaya, he got an opportunity to watch for hours. मैम उनको उनके स्कूल से अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो इधर खेले इन अ कंप्यूटर फॉर अंडर 17 हैरीज मेरिनियल चैलेंज शील्ड. मैम उन्हें मेमोरियल. हाँ तो उनको चैलेंज दिया था मीन्स ही स्कोर हिज फर्स्ट हैरिस मेमोरियल चैलेंज फील्ड में वो कंपटीशन में गए थे, कंपटीशन अंडर 70 जब 70 इयर्स थे तब. हाँ और मैम उधर ही उन्होंने अपनी फर्स्ट सेंचुरी बनाई थी. उसने फर्स्ट सेंचुरी बनाया था. सेंचुरी बनाई थी द एज ऑफ 12 एंड सिंस और फिर उन्होंने उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. हाँ उनने बाद उनके पीछे मुड़ के नहीं देखा. मैम फिर जब वो 16 इयर्स के हुए तो उन्हें 205 डेज तक उनने अपना उनका टेस्ट ट्यूब बनाया इन नवंबर 1989. हाँ टेस्ट ट्यूब इन नवंबर 1989 इन द नेशनल स्टेडियम इन कराची में. द एवरी नेक्स्ट ईयर he hit his first test century at Old Trafford, मैनचेस्टर, इंग्लैंड. Manchester, England में. मैनचेस्टर सेंचुरी इंग्लैंड के मैनचेस्टर टाउन है. ओल्ड उन्होंने ट्रैफोर्ड फर्स्ट वहाँ पे सेंचुरी बनाई उसने थी. फर्स्ट सेंचुरी बनाया अपनी था. फर्स्ट सेंचुरी बनाई थी उधर. हाँ his century was an example of an exercise in technique. हाँ consideration and application behind his tender age and it save a match being lost. मैम उनने ना मैच को ना लॉस्ट होने से बचा लिया था. मीन्स जैसे हमारा हारने वाले जैसा था पर बच गए हम लोग. हाँ पर हम लोग बच गए मतलब उन्हें बचा लिया था. had it come 31 days earlier he would have been the youngest century. 31 डेज कम होता उनका उम्र, 31 डेज तो वो दुनिया में सबसे यंगेस्ट सेंचुरी मेकर स्पोर्ट्समैन बन जाता हिस्ट्री में. हाँ मैम हिस्ट्री में बन गए इन 1991 से 1919. हाँ बोलो in 1991 राजल. हाँ राजल बोलो. मैम यहाँ पे सेंचुरी स्कोर पास इन संडे, वो एक प्लेस का नाम है. सेंचुरी ओल्ड ट्रैफोर्ड. हाँ ओल्ड ट्रैफोर्ड इज द प्लेस नाम. ओल्ड ट्रैफोर्ड इज द मैनचेस्टर ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड की जैसे कि अहमदाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है ना. अहमदाबाद को मैनचेस्टर बोला जाता है इंडिया की. ऐसे ही ओल्ड ट्रैफोर्ड इज द मैनचेस्टर ऑफ इंग्लैंड. ओके राजन. ओके यस मैम दूसरा डाउट है. बोलो व्हाट इज इट डाउट. मैम SYDNY उसका मतलब क्या होता है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आया है. सिडनी. हाँ ऑस्ट्रेलिया में है. मैम वो एक प्लेस का नाम है. सिडनी. हाँ सिडनी ओपेरा हाउस.
In 1991 Everyone and mute yourself. 1992, he went to Australia. मैम 1991 और 1992 के बीच में उनने ऑस्ट्रेलिया में गेम किया था. There were a still talk in a way of his century scored in Perth and Sydney. मैम ये पर्थ मतलब वो भी इधर जगह दिया? का नाम है, ऑस्ट्रेलिया में आया है. हाँ ओके. चलो एवरीवन, ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये अच्छे से करना. एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट टेस्ट. बाय बाय. रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास. बाय.